We welcome Nilofer. Welcome in live with Afia Chand. Thank you so much. تو آپ ہمارے آڈینس کو بتائیے گا اپنی ذرا اپنی لائف ہسٹری کے بارے میں بتائیے گا کہ کہاں سے آپ بلونگ کرتی ہیں اور کس طرح سے آپ نے کیسے خیال آیا یہ برک بریکنگ کا. وائی برک بریکنگ؟ کوئی آسان ٹاسک کیوں نہیں چوز کیا آپ نے؟ یار عافیہ، سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ. مجھ سے بہت قابل لوگ ہیں اس کنٹری میں، پھر بھی آپ نے میرے کام کو اکنالج کیا. تھینک یو فار ریچنگ آؤٹ ٹو می. مجھے بہت پہلے آنا تھا آپ کے ساتھ، آپ کے لیے تھینک یو ویڈیو بنانا تھا، لیکن چونکہ چہرے پہ انجری ہو گئی تھی تو میں آپ کے لیے تھینک یو ویڈیو نہیں بنا سکی. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ مجھے یہاں انوائٹ کریں. میں بہت آرڈنری ہوں، پھر بھی اگر آپ نے سمجھا کہ میں اس قابل ہوں تو تھینک یو سو مچ. میرا نام نیلوفر ہے، نیلوفر شہرازی. I have a degree in chemistry. بیسیکلی جو میرا پروفیشن ہے، I deliver chemistry in English lectures. مارشل آرٹس میری ہابی ہے. میرا تعلق سب سے پہلے، جسے میں ہمیشہ کہتی ہوں، پاکستان سے ہے، اور پاکستان میں خیبر پختونخوا سے ہوں. کچھ عرصہ پہلے کچھ ایشو ہو گیا تھا 2016 میں. آئیز ڈیمیج ہو گئے تھے and I ended up being on wheelchair. ویل چیئر سے اٹھ کر یہاں تک کا جرنی تھا، اور اس کو پورٹری اس لیے کیا تاکہ ہم اوروں کو موٹیویٹ کر سکیں. مشکل فیلڈ اس لیے چوز کیا کیونکہ آئی تھنک کہ انسان اشرف المخلوق ہے اور یہ پہاڑ پتھر وغیرہ اس سے چھوٹے ہیں، تو یہی لوگوں کو دکھانا تھا. تو ایسے کنٹری میں جہاں پہ ایک لڑکی کا سائیکل چلانا اتنا معیوب سمجھا جاتا ہے، آپ نے سیدھا برک بریکنگ پہ آپ آ گئی. اتنی ہمت آپ نے کہاں سے لی؟ اور کیا کوئی آپ کی کوئی انسپریشن ہے، کوئی پاکستان میں یا پاکستان کے باہر کوئی ایسی خاتون یا کوئی ایسی پرسنالٹی جن کو دیکھ کے آپ کے اندر یہ موٹیویشن پیدا ہوئی ہو کہ نہیں یہ میرا ٹارگیٹ ہے یہ؟ یار سب سے پہلے انسپریشن جو ہے وہ شاید پاکستان اور اس سے باہر نکلی جو ہماری ایجوکیشن ہے، تو اس میں کوئی اتنی بڑی بڑی اگزامپلس ہیں کہ ان کے سامنے پھر کوئی پرسنالٹیز بھی نہیں ہیں. چونکہ میری اسٹڈی ہے، میں نے ڈفرینٹ مذاہب بھی پڑھے ہیں، اسلام بھی، ہندوازم بھی، سکھزم بھی، بدھزم بھی. تو میں نے ہر مذہب کو تقریباً مورلیس سیم ہی پایا. ہر مذہب میں ہی یہی سکھایا گیا تھا کہ انسان بہت اسٹرانگ ہے، اور اگر وہ اپنی نیت صاف رکھے تو بہت آگے جا سکتا ہے. جہاں تک کلچر کی آپ نے بات کی کہ پاکستان کا کلچر ایسا ہے کہ یہاں پر چیزوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے، تو میں چونکہ خیبر پختونخوا سے ہوں، میرا ہمیشہ سے یہ بیلیف رہا کہ ہمارا کلچر بہت خوبصورت ہے اور ہمارا مذہب بھی بہت خوبصورت ہے. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ اسلام بہت انٹلیکچوئل لوگوں کا مذہب تھا، اس کو اتنے انٹلیکچوئل لوگوں نے سمجھا نہیں. جو پریکٹس کیا گیا وہ بیسیکلی ہمارا کلچر تھا نہیں. ہم پشتون گھرانوں میں پیدا ہوئے، لیکن لکیلی ہم ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے جہاں مردوں نے اس کلچر کو بہت اچھا سمجھا تھا. وہ ڈومینیٹنگ ضرور تھے، لیکن ان کو پتا تھا کہ ڈومینیٹنگ فار دا سیک آف رسپانسبلٹی، کہ خدا نے ان کو رسپانسبلٹی ہے. تو یہ کریج اس لیے آیا کہ مجھے میری فیملی نے بہت سپورٹ کیا. جیسے میرے والد صاحب کہتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ جاب نہیں کرو تو وہ یہ کہیں گے کہ بچے جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے، بھائی کس لیے ہیں آپ کے بھائیوں کا کام ہے کہ آپ کا خیال رکھیں. تو ہمارے کلچر کو چونکہ ہمارے گھر میں لوگ سمجھتے تھے اور مذہب کو بھی سمجھتے تھے، تو اس لیے ہمارے لیے بہت آسانی ہو گئی اور میں یہاں تک پہنچ گئی. مطلب آپ کے خیال میں جو ہمارا مذہب ہے اور جو ہمارا کلچر ہے یہ ہرڈل نہیں ہے، یہ بلکہ ایک لڑکی کے لیے ایک اسٹرینتھ ہے. ہماری فیملی، ہمارا کلچر اور یہ ساری چیزیں. چلیں یہ تو یہ بات ہوگی. اس کے بعد میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے ہے، کیونکہ جیسے میری آپ سے بات ہوئی تھی اور آپ کے پچھلے انٹرویوز بھی میں نے دیکھے ہیں، اس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ آپ نے لائف میں آپ کے فیلئرز بھی آئے، اسپیشلی کیونکہ میں بھی ایک سی ایس ایس ایسپیرنٹ ہوں، اور بہت سارے اور بھی ہماری آڈینس میں ایسی لڑکیاں اور حضرات بھی ہیں جو کہ سی ایس ایس ایسپیرنٹ ہیں اس جرنی میں. تو مطلب جب آپ کو فیلئر ہوا یہ، کیونکہ اس میں ہم بہت زیادہ اپنا انپٹ بہت زیادہ دیتے ہیں، اسپیشلی جو سیریس لوگ ہوتے ہیں. تو آپ نے بھی بہت سارے کمپیٹیٹیو ایگزامس میں آپ بھی آئی لیکن ایلوکیشن نہیں ملی. اس کے بعد کا جو ڈپریشن تھا، کیا اس سے نکلنے کے لیے آپ یہ برک بریکنگ میں آ گئی تھی، یا یہ جرنی آپ کا اس میں آپ آلریڈی تھے پہلے سے؟ اور کس طرح یہ نیگیٹیوٹی کو آپ نے پازیٹیو وے میں چینلائز کیا اور اتنا زبردست قسم سے چینلائز کیا کہ آپ ورلڈ ریکارڈ ہولڈر بن گئی؟ تو دیکھنے والوں کو بھی ذرا کچھ بتائیے گا اپنے بارے میں، اور کس طرح سے وہ اپنی نیگیٹیو انرجی کو، اپنے ڈپریشن کو، اپنی اینگزائٹی کو اتنا پروڈکٹیو اور اتنا زبردست وے میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں، چینلائز کر سکتے ہیں.
फिजिकल एक्टिविटीज हमेशा बेहतर है ऑब्वियसली, पर योर एंजाइटी, आप अपना सारा जो है वर्कआउट में एंजाइटी निकाल देते हैं। जहां तक आपकी बात हुई फेलियर्स में, तो एग्जाम्स के फेलियर्स वो इतनी बड़ी बात नहीं होती। लाइफ में जो और फेलियर्स हो जाते हैं, जो सोसाइटी आपको फेस करती है, वो जरा ज्यादा मुश्किल होते हैं। लेकिन मैं हमेशा बिलीव करती हूँ इंडिविजुअल स्ट्रेंथ में। आप, अल्लाह ने आपको इतनी कैपेबिलिटी दी है कि आप कोप कर सकें। जब मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट किया था, चूंकि अक्सर लोग यंगस्टर्स आते हैं मुझसे पूछते हैं कि हम भी रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, तो हम पढ़ाई से ब्रेक लेना चाहते हैं ताकि रिकॉर्ड बना सके। तो मैंने जब मार्शल आर्ट स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड इन 2018, तो तब मेरा पीएमएस एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो चुका था। मैं पीएमएस का एग्जाम भी दे रही थी, कभी स्क्रीनिंग होता था, कभी एग्जाम का, कभी साइकोलॉजिकल इंटरव्यू। मेरी फाइनल स्टेज में एलोकेशन नहीं हुई थी, मेरी रिटन एग्जाम क्वालिफाई हुआ था। तो मैं एग्जाम भी दे रही थी और साथ में मैं 2 जॉब्स भी करती थी। और जब मेरा इंटरव्यू था तो मैंने 3rd जॉब भी ज्वाइन कर ली थी, 10 PM to 1 AM, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम केमिस्ट्री के साथ गुजारूं, ताकि मेरी प्रैक्टिस हो सके। तो मैं 3 जॉब्स भी करती थी, पीएमएस भी करती थी, और इसके साथ मैंने रिकॉर्ड भी बनाया। तो अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, और आप अपने आप को इतना बिजी कर लो कि वो नेगेटिव एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़े। फिजिकल एक्सरसाइज इज अ वेरी गुड वे। नमाज भी अगर आप देखें, जो इबादत भी है, तो वो भी आपको काम करती है। जब आप सजदा करते हो तो जमीन जो है वो आपसे आयंस ले लेती है, आपके बॉडी को काम करती है। तो इस्लाम में भी इस पे फिजिकल एक्सरसाइज पे बहुत जोर है। अल्लाह पर यकीन और फिजिकल एक्सरसाइज, और साइंस भी इसी को सपोर्ट करती है। जी जबरदस्त। तो अब ये बताइएगा कि जो हमारी लड़कियां आपको देख रही हैं, स्पेशली मैं बार बार लड़कियों का जिक्र इसलिए करती हूँ क्योंकि बेसिकली ये प्लेटफॉर्म गर्ल्स के लिए है, उनको इंस्पायर करने के लिए। तो किस तरह से स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा जा सकता है? मतलब जो हम मैंने भी ये अपनी जर्नी में देखा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि उतनी बड़ी हर्डल्स होती नहीं है, लेकिन हमारा सोशल एक सेटअप इस तरह का है, हमारी नॉर्म इस तरह की है कि हम समझ रहे होते हैं कि अगर मैंने ये किया तो ये हो जाएगा, ये किया तो ये हो जाएगा। तो इसमें कुछ मैसेज दीजिएगा, फिर हम दूसरी तरफ। यार, जो खवातीन का है, तो मैं थोड़ी सी ऑनेस्ट भी हूँ, तो मेरा ऑनेस्ट आंसर ये होगा कि शायद हम खवातीन को खुद भी लगता है कि हम बड़े नाजुक हैं और हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। शायद हमें खुद भी आदत हो गई इन चीज़ों की। हमने भी इसको ना खुद बड़ा कमज़ोर समझ लिया, और हमने कभी खुद को स्टडी नहीं किया कि हम कितने पावरफुल हो सकते हैं। खवातीन को मैं स्टडी करती हूँ कि वो गज़ात लड़ती और वो सब कुछ करती थी। अगर वो सब कुछ कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। इस्लाम ने आपको अगर थोड़ी कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, तो इस्लाम ने आपको फेवर दिया है कि मर्द आपकी ख्याल रखे, तो वो आपको फेवर दे रहा है। इसमें ये नहीं कि आप कर नहीं सकते, अगर आप करना चाहो तो इस्लाम इसको बहुत अप्रिशिएट करता है। तो 3 पहले तो हमें अपना ब्रेन है, हम भी कमजोर, हमें बहुत चाहिए हुई है। पहले हमने इसको खुद करना है, और सोसाइटी जो है ना, ट्रस्ट हमेशा आपको गेन करना होता है। आप खुद इस तरह से परफॉर्म करो, खुद को इस तरह रखो कि आप अपने आप को मनवा लो। जब आप कुछ अचीव करते हो तो सोसाइटी आपको मान जाती है। शुरू में जब भी आप कुछ करना चाहोगे आपको हर्डल्स आएंगे। तो खवातीन को सबसे पहले ये अपने जहन से हटा कि मैं कमजोर हूँ या मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप खुद एक्सेप्ट करो और खुद देखो कि आप क्या कर सकते हो। जैसे मेरी जर्नी है कि दोनों आंखें डैमेज हो गई थी, या डॉक्टर्स कह रहे थे कि आप पढ़ नहीं सकती क्योंकि आप सेंसिटिव हो और आपको कुछ इश्यूज हैं ब्लड के, आप एनीमिक हो, बहुत सिवियर एनीमिक हो, एंजाइटी आपके लिए ठीक नहीं है, आपके लिए इशू हो जाता है। लेकिन मैंने इन चीजों को नहीं सोचा। मैंने सोचा कि मैं अल्लाह पर यकीन करूंगी और मैं मेहनत करूंगी। अगर मैं मेहनत करूंगी तो अचीव कर लूंगी। तो चाहे मर्द हो या औरत हो, अगर वो कुछ अचीव करना चाहे तो वो कर लेता है। सोसाइटी में हार्डल्स हर एक के लिए है। आप खुद इतने सख्त हो जाओ कि सोसाइटी का मुकाबला कर सको। और जो मेरी जर्नी है, बिलीव मी यार, मुझे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स ही मिला लोगों से। मुझे लोगों ने अप्रिशिएट ही किया। मैं पत्थर तोड़ने जाती हूँ, बाजारों में जाती हूँ, लोग मुझे हेल्प भी करते हैं। तो माशरा इतना बुरा नहीं है जितना हमने इसको समझ लिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, जब आप कुछ भी करने घर से निकलते हैं तो आपको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, और उसके साथ साथ बहुत सारे सपोर्टिव लोग भी आते हैं। तो अब हमारे देखने वाले भी आपसे कुछ क्वेश्चंस कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। महक शाहिद भी बहुत ही एक जबरदस्त हमारी फ्रेंड है, जो कि आपको बताते चले बलोचिस्तान की फर्स्ट फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जो इस टाइम हमारा साथ दे रही हैं।
तो वो पूछे हैं नीलोफर आपको अब तक कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसको तो हम एड्रेस कर चुके हैं, फिर दोबारा बाद में इसकी तरफ आते हैं। पहले हम एक और क्वेश्चन अभी हमारे साथ आया था जो कि मेरी भी क्यूरियस में था कि आपने अपनी ट्रेनिंग कहाँ से स्टार्ट की, और दूसरा ये कि कितने इंस्टीट्यूशन हैं इस तरह के कि जो लोग मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या आपकी तरह रिकॉर्ड होल्डर बनना चाहते हैं, उनके लिए आप बताएं कि कहाँ पे जाएं। सबसे पहले तो ट्रेनिंग की जो आपने बात की, तो ट्रेनिंग तो अगर इंसान करना चाहे तो कहीं भी कर सकता है। जैसे हमारे कोलीग हैं इरफान महसूद, 30 गिनीज रिकॉर्ड है उनके, लेकिन चूंकि वो वजीरिस्तान के थे तो उनको एकेडमीज में जगह नहीं दी जाती थी ट्रेनिंग के लिए। उनको कहा जाता था कि नहीं आप किस लिए ट्रेनिंग कर रहे हो, तो उनको हर जगह से निकाल दिया जाता था। लेकिन उसके बावजूद वो पहाड़ों से जंप्स लगाते थे, पानियों में प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने ऐसे खुद को स्ट्रांग बनाया और 30 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लाए। आईडीपी है जिनको अपना घर छोड़ना पड़ा, राय के मकान में डियाई खान में रहते हैं, वहाँ ने ट्रेन किया और अपनी खुद की एकेडमी खोली जहाँ पर एज वॉलंटियर वो लोगों को ट्रेन करते हैं। और उनके 9 इयर्स का स्टूडेंट है जो भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। तो सबसे पहले तो अगर आप कुछ करना चाहो, जो मेरा काम है आप लोगों को मोटिवेट करना, मैं आपको डराना नहीं चाहिए, तो अगर आप कुछ करना चाहो तो आप पहाड़ों में भी कर सकते हो। उसके बाद जहाँ तक इंस्टीट्यूट की बात है, जी बिल्कुल, टीडीएस फाइटिंग क्लब एफए मरकज मास्टर हनीस है वो जैकी चैन, ही इज वन ऑफ हिज पर्सनालिटी। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा एग्जाम भी था, मेरे 3 जॉब भी थे, तो मैं बहुत रेगुलर नहीं थी, लेकिन वो हमेशा मोटिवेट करते रहे। और मेरे कोलीग्स, मैं नाम लेना चाहूंगी शहरियार का और सदफ का, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। ऐसे काफी सारे इंस्टीट्यूशन है, लेकिन जिस इंस्टीट्यूशन मैंने ट्रेनिंग ली इट इज कॉल्ड टीडीएस, ये एफएच मरकज में है। अभी अनीका, वेलकम अनीका। अनीका की तरफ से हमें एक क्वेश्चन आया है। शी इज आस्किंग के कैन यू टेल अस व्हाट sexist mindset, gender discrimination you had to come across from people around you and how you overcome it? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि सारी वर्किंग वुमेन स्पेशली और जो एस्पायर कर रही है घर से बाहर जाकर काम करने, इसको आंसर कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सबसे पहले तो मैंने अपना जहन धोया कि बीइंग अ खातून मैंने शायद मर्दों को ज्यादा टफ और मर्दों ने मुझे कम टफ टाइम दिया। जितना मेरे अबू मेरे लिए ख्वार हैं, जितना मेरे भाई मेरे लिए ख्वार होते हैं, तो सबसे पहले तो उन मर्दों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरे बोलते हैं कि बच्चे आपको, आप फीमेल हो, गाड़ी आपके साथ होनी चाहिए, भाई पैदल आ जाएगा। या मेरा भाई मेरा ख्याल रखता था, मैं सो थी वो बैठा होती है आराम से सो रही है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि बीइंग खातून हमेशा ज्यादा बातें करने की आदत होती है और गिले करने की भी आदत। तो सबसे पहले तो अपना माइंड वॉश करना है। डिस्क्रिमिनेशन, चूंकि मैं जैसे कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स भी मैं क्वालिफाई कर चुकी हूँ, तो मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ा है, और जिसने मुझे साइकोलॉजी पढ़ाया था एएसपी सैयद करार हुसैन, वो सीएसएस टॉपर थे। तो जो हमने साइकोलॉजी पढ़ी है, जो इंसान जो हरकत करता है वो बेसिकली उसकी अपनी पर्सनालिटी होती है। मैंने कभी क्रिटिसिज्म को किसी शरीफ बंदे से आते हुए नहीं देखा। मैंने नहीं देखा कि एक शरीफ इंसान था जो आके टीवी पे बैठा और उसने किसी की बुराई की। मैंने हमेशा लो ग्रेड लोगों से क्रिटिसिज्म आते हुए देखा, तो मैं एंजॉय क्योंकि यार ये बंदा लगता है अभी तक इसने क्रिटिसाइज नहीं किया। तो जो जो करता है पर्सनालिटी शो करता है। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ओवरकम कर रहा है। मेरा ये बिलीफ है कुछ चीजें आपको अच्छी लगेंगी, कुछ नहीं अच्छी लगेंगी। जो अच्छी लगेंगी अप्रिशिएट करो, जो नहीं अच्छी लगेंगी इग्नोर कर दो। लेकिन अगर कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो अपनी मेंटालिटी शो रहे हैं, तो आप उनको एजुकेट करो, इग्नोर कर दो, दैट्स इट। मतलब आप क्या कि अगर आपको नेगेटिविटी फेस करना पड़ती है तो उसको यहाँ पे नहीं लेना, या तो अगर आप को लग रहा है कि आप उसको किसी को एजुकेट कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज जस्ट इग्नोर। और बस अपने फोकस है, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर डेस्टिनी और अपना काम करते हैं। बहुत ही बहुत इंस्पायरिंग आंसर है ये, वरना आमतौर पर लड़कियों मतलब मैं बिल्कुल यार, अंडर रेट नहीं कर रही, लेकिन हम लोग ना वाकई बीइंग अ गर्ल या वुमेन हम लोग दूसरे लोगों को ही करते रहते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि ये अननेसेसरी है, इसको इग्नोर करें, इसको साइड पे करें।